when Arnab left Times Now, that time slot of Arnab was taken by two people, not one, Navika, and they had to hijack Rahul Shivshankar. So Arnab's replacement were two men. So that guy is equal to two or three anchors. He's very sharp. See, he's very sharp. He's very. There is no denying that he's a superstar. He's the Amitabh Bachchan of electronic media, or Virat Kohli of electronic media, or Mahendra Singh Dhoni of electronic media, if you so want. So many people, their shops have been closed because of Arnab. Where is that celebrated Barkha Dutt? One teacher, Nidhi Rajan, has become associate professor in your country, Harvard, teaching in a university. Bhupen Chaubey has gone to, launch his own stuff. So he has rendered many big celebrities jobless. Who watches India Today channel when Arnab is there? See, still people watch CNN channel because CNN has fortunately not taken extreme view on anything. So people who want the right ideological view, they don't go to Times Now, they go to Arnab. So Arnab has become number one, and he has put, at least during his prime time, every other channel out of business. Second thing is the launch of Republic Bharat. When Republic Bharat was launched, I am telling you, Babaji is right. It cannot be jugglery of TRP. Republic Bharat beat Aaj Tak Hollow in viewership. It's a known fact. See, first of all, the BRC figures, they can be few percentage points here and there. But if you are telling me that for Republic Bharat, somebody can manipulate TRP, it is impossible. For a very niche channel whose viewership is very, very low, and you should download an app sometimes of BARC. They have an app and they constantly are showing the number of impressions, the position of and it's changing in real time. So this is not a game of gulli danda which can be manipulated, or this is not a game of cricket which can be, sorry to say this, which can be fixed sometimes. It's scientific. It is driven by algorithm. It's not simple to change. It's like saying that BJP wins elections because the voting machines are tampered with. It's so stupid to say that. So I don't believe in the TRP story at all. Actually, I don't believe in that. In fact, nobody believes, and everybody felt that this was being created to corner Arnab. और ये बाकी की बातें भी जो आपने कही, and there is a clear-cut stand taken by Maharashtra government under Chief Minister Uddhav Thackeray ji. I smiled with the word ji, but sincerely speaking, एक fairness जो अप्रोच में होती है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही दूर दूर तक. और जैसे आपने बताया था सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बिफोर एनी इन्वेस्टिगेशन वाज अंडरटेकन पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो सुसाइड किया है उसने. तो वहां से ही ऐसा लगा कि दाल में थोड़ा थोड़ा काला है, लेकिन वो दाल में कालापन बढ़ता चला गया है अभी तो. और अभी जिस स्थिति में हम आ गए हैं वहां पे राजनीति का जो एक रोल है वो भी दिख रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अल्टीमेटली स्पीकिंग प्रजातांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रतिनिधियों की गठबंधन के द्वारा बनाई गई सरकार है. हालांकि ये भी हम भूल नहीं पाते हैं कि शिवसेना ने जब चुनाव लड़े थे तो वो जिस एक भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति से सत्ता की तरफ बढ़ रही थी और बाद में उन्होंने जो परिवर्तन किया है वो भी कहीं ना कहीं एक अलग तरह के दृष्टिकोण को हमारे सामने लेकर आता है. पर बाबा जी राजनीति वाली बात को लेकर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ. राजनीति के साथ में जो एक अपराधियों का मेल जोल है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जाए, बिहार में जाए, वो कई जगह पर जितना ज्यादा खुलकर दिखने में आ जाता है उतना पहले शायद महाराष्ट्र में था कि नहीं था इसके बारे में मुझे पता नहीं. पर अभी हम जिस स्थिति में है, जो समीकरण है महाराष्ट्र सरकार का या राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का,
तो केंद्र सरकार के मंत्री इस सारे प्रकरण में अलग अलग प्रसंग जिनका उल्लेख हम करते रहे हैं, वो इसकी आलोचना तो करते रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर क्या केंद्र के पास कुछ भी ऐसा उपकरण नहीं है कि वो इस तरह के वृत्ति के साथ जो बार बार टारगेट किया जाना है रिपब्लिक टीवी को, या जो इस तरह के मुद्दे उठाने वाले हैं उनको, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही उठा रहे हो, तो क्या कोई आपको लगता है केंद्र सरकार के पास कोई उपाय इसका है या नहीं है? उसका टेक्निकल रूप से उत्तर तो कोई ना कोई संविधान का स्पेशलिस्ट देगा कि केंद्र सरकार के पास इसका हल है कि नहीं है। लेकिन जैसे मैं बताऊं, मूलतः मोदी जी भी हैं, तो बंगाल में आप देख लो, बंगाल में यहाँ से ज्यादा खतरनाक स्थिति है। तो हमको लगता था पहले एक राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। यहाँ भी लगाएंगे, मुझे लगता है सीधे सीधे लेंगे। और दूसरी बात, राजनीति में आप एक बात और जानते हैं, मैंने तो आज ही लिखा तो सारे बीजेपी वाले मेरे सिर पे चढ़े हुए थे, मतलब मेरे लिखने पे। मैंने कहा था हो सकता है भविष्य में तो शिवसेना से वापस गठबंधन हो जाए। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा सुधीर भाई बहुत अच्छा मतलब उसका वर्णन कर रहे थे, जो आपने प्रश्न पूछा था कि पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश होता था, 4 पत्रकार एक दूसरे से बात करते थे, पहले 4 व्यापारी भी एक दूसरे से बात करते थे, और पहले राजनीति विशुद्ध राजनीति होती थी, तो मापदंड भी थे और उसमें पुराने मानदंड थे, एक मर्यादा थी। अब चूंकि मर्यादा कहीं नहीं बची है, क्यों, जैसे आप जिस बात को उन्होंने बहुत जिसको कहना चाहिए सभ्यता के साथ रखा, उसको दूसरे रूप में उत्तर देता हूँ। कई बार पत्रकार जब मुझसे तीखे शब्दों में बात करते हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है या तुम्हारे ऑफिस जो कमर्शियल या वाणिज्य देखता है उसकी वैल्यू ज्यादा कमर्शियल की है ना। आप देखो, एक अखबार जो 60 रुपए में छपता है वो 5 रुपए में बिकता है, तो बाकी 55 रुपया कहाँ से आता है। आप राजस्थान पत्रिका की बात कर रहे हैं, आप तो जुड़े राजस्थान से। ये राजस्थान पत्रिका राजस्थान में घर घर जाता था, लेकिन बाद में जब दैनिक भास्कर वहां घुसा तो उसने 1 रुपए में अखबार किया, और 1 रुपए में अखबार करने के बाद में आप देखो वो पूरे उसने एक शुरू हुआ। यही सिस्टम बंबई में हुआ था। आप जो बोल रहे हैं ना, केबल चैनल का जो होता है, केबल टीवी का आप जो देखते हैं, सिटी केबल का, इन केबल का, कई लोग उस झगड़े में मारे गए। तो राजनीति में पहले इतनी जिसको बोलते हैं नीचता ही नहीं थी, जैसे फिल्मों में इतनी घटियापन नहीं था। पुराने फिल्मी गीत आपने देखे होंगे और आजकल के फिल्मी गीत देखे होंगे, क्यों, क्योंकि वो एक नीचा आ गया। अब आजकल फिल्मों में गाली का प्रचलन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? वो लोग बोलते हैं हमको यथास्थिति दिखानी है, तो यथास्थिति के नाम पे हर चीज को जमीन पे लाया गया। और ये राजनीति तो गठजोड़ जो आप देख रहे हैं पहले से भी था। ये जितनी नीचता पे पहुंच रहे हैं अभी और नीचता होगी। मुझे लगता है तो कंगना रनौत किस्मत से बंबई में नहीं है, और आप जैसी इसकी घटना पड़ रही है ना, कुछ दिन बाद हो सकता है आप कहेंगे कंगना रनौत को भी गिरफ्तार कर लिया। जब किसी फेसबुक वाले को सर पे कपड़ा डाल के बांध के ले जाते, तो कंगना रनौत इसलिए बची कि वो हिमाचल प्रदेश में है और गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी थी। लेकिन गवर्नमेंट किन किन को सिक्योरिटी देगी, और मुझे तो उन कार्यकर्ताओं की चिंता हो रही है जो साधारण कार्यकर्ता, क्योंकि उनके लिए पार्टी भी नहीं बुलेगी, बीजेपी भी सरकार भंग नहीं करेगी, 356 का प्रयोग नहीं करेगी। ये सारे ट्वीट खेलेंगे और वो मारपीट खेलेंगे, ये अपनी सभ्यता में रह जाएंगे और गुंडागर्दी चलती रहेगी। अभी काफी दिनों तक चलेगा अशोक जी, सीधा सीधा इसका कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एक उजला पक्ष देख पाए। बाबा जी ने जिस तरह से कहा है कि अभी तो और नीचे गिरेगा, पर ये मानने या इसको मानकर बैठ जाने से काम चलता नहीं, इसलिए हम हमेशा नहीं, मैं एक मिनट के लिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। जी। कुछ चीजों का हल विश्व स्तर पर निकलेगा। अभी तक जब भी भारत की समस्या की बात होती थी, भारत में बंबई में बम फटते थे, अमेरिका में फटे, यहाँ फटे, भारत के गली गली में बम फटे, पर दुनिया ने कभी हमारे बारे में सोचा नहीं। अब जब फ्रांस में फंसे बम फटे, तब उनको मालूम पड़ा इस्लामिक आतंकवाद है। जब अमेरिका में ट्विन टावर टूटे, तब बुश बोले कि इस्लामिक आतंकवाद है। तो क्या है कि जैसे भारत की समस्या है, ये अर्नब भी जिस समस्या में उलझा वो हिंदू मुस्लिम समस्या ही है। जिसको आप देखते पालघर की समस्या हो या दूसरी फिल्मों में माफिया की समस्या हो, अधिकतर समस्या वो चूंकि एक हिंदू पत्रकार के रूप में उभरा, इसलिए ज्यादा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इसके वास्तव में गहराई में जाएं तो सुशांत के उभरने के पीछे वो कारण है जो पालघर से उठा है, कि उसने कम से कम हिंदू मुद्दों को बोलना चालू किया। क्योंकि अब क्या बोलेंगे आप, दिवाली पर पटाखे ना फोड़ जाए 1 लाख रुपए जुर्माना है। आप देखेंगे दिवाली पर जिन्होंने पटाखे फोड़ रहे हैं उनके ऊपर 1 लाख जुर्माना है, और जिन लोगों ने दिल्ली बम विस्फोट किए थे 28 करोड़ की सहायता उन लोगों को दी गई दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देखेंगे अभी तो ना, लेकिन अंत में जब ये अकी हो जाएगी
तो अति के बाद ही हल निकलेगा। आप भी देखते हैं जब अवतार होता है, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अवतार के पहले पाप का घड़ा भरना पड़ता है, तब अवतार होता है। तो पूरी दुनिया में एक साथ ये माहौल खड़ा होगा, बाबा वापस जी, सच्चाई आएगी। मैं आपको इंटरप्ट करते हुए अगर ये पाप के घड़े के भरने वाली उपमा है तो इसको डिक्लेयर हम भी मिलकर कर सकते हैं कि भाई पाप का घड़ा भर गया है, क्योंकि वाकई में कभी वो अर्नब भी अरेस्ट हो गया। तो फिर से मैं बातचीत को अर्नब की तरफ लाता हूँ। सुधीर जी, हाउ डू यू सी मूविंग फॉरवर्ड? ये अगेन हम केस की निटी ग्रिटी पर जाते हैं। थोड़ा बहुत जो आपकी जानकारी से आपने हमें अभी बताया कि ये केस जर्नलिज्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये लेन देन का मामला था और वो किसी को आत्महत्या के लिए बाध्य कर देने के आरोप को लेकर पुलिस ने अरेस्ट किया है। और वो एक आर्किटेक्ट नायक थे, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जो 3 नाम लिखे थे उसमें से एक नाम रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी का भी है। और कुछ आपने रकम भी बताई थी, किसी से उनको करोड़ 80 से लाख। ज्यादा पैसे लेने थे, किसी को 83 लाख इत्यादि। और ये केस की फाइल बंद हो चुकी थी अप्रैल 2019 में शायद, राइट। लेकिन उसको फिर से खोला गया। तो अब हम सिर्फ कानून जिस तरह से आगे बढ़ता है, कई बार जिस तरह से कार्यवाही हो रही है उसमें वो कानून की पालना भी हो नहीं रही है। पर इस मामले में आपको क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं अर्नब के बेल हो जाने के साथ साथ रिपब्लिक टीवी के संचालन और ये जिस प्रखरता से कई विषयों पर मुखरित होते रहे हैं उसके बारे में मूविंग फॉरवर्ड आपको क्या संभावना लगती है सुधीर जी? See, first of all, this case will not stand scrutiny, or they can't keep him inside for too long. There are 3 guys who were owing money to this guy Anvay Nayak, who committed suicide in May 2018. It was a very unfortunate case. Not only he committed suicide, his mother also committed suicide. But the investigation proved that mother was murdered, and later on this guy committed suicide. So that, and the 3 names was, one is Arnab or ARG Outlier, which had 83 lakhs. Then Firoz Sheikh of iCast, he owed 4 crore rupees. And Nitish Sharda, a Kolkata-based guy, he owed 55 lakhs. So what action? See, if this is the suicide note, I have seen that suicide note. It was shown by Shekhar Gupta in print.in. So I was able to take a snapshot. See, this case was closed by Raigad police. ऐसा होता है when abatement of suicide case होता है, then you can't close such a case. The court has to order closure of such case. Police cannot close the case. Once there is a suicide and it has gone to the court, then it is court of Maharashtra court which has closed the case in April 2019. But April 2019 and September, October, November 2020 are very different. Now the daughter of Anvay Nayak, her name is whatever her name is, she went to the Home Minister, and the Home Minister said he will open the case. And simultaneously we hear that the Raigad police investigated further and they requested the court to reopen the case, and the court has ordered its reopening. But if you tell the court that I have got incriminating evidence against Arnab and I need to reopen the case, the court will say, okay, reopen the case. Court pagal thodi hai. Court will say, oh, reopen the case if you say you have got incriminating evidence. So till now, we don't know. This is muscle flexing. This is muscle flexing. They are trying to intimidate Arnab Goswami, and I will also agree to our Swamiji when he is saying, unfortunately, the support to Arnab has come only in the form of Twitter, as he has said. It has not come in the form of showing solidarity. Only this evening, people like General Bakshi and all, they all went to Jantar Mantar and they said they will start a protest there. My worry is, what should the central government do for now?
See, anything which the central government does, it is seen as unnecessary interference by the center. Abhi Governor Saab had, written a letter. Governor Saab, I'm forgetting his name of Maharashtra. Koshari ji. Koshari is a simple person. He wrote a letter, why are you not opening the temples? And he wrote a letter from his heart. And he said, that temple, people are doing this. People also need to go to a place where they can get some moral strength. If they pray together by maintaining social distancing, temple should be allowed to open. They politicize the case. Government, like my wife is saying, Modi should dismiss the Shiv Sena government. My wife is 100% pro Arnab. For him, he's a Dev Purush, who is, as Babaji said, he's a voice of the nation right now. Today, he is a voice of the nation. After this episode, and I have written an article in Rediff also, Arnab will become even stronger, and he will come out much stronger. I am telling you. But what would I do if I were Arnab? But Maharashtra government, as long as there is Shiv Sena there, they will keep on pricking. They will keep on disturbing him. See, he is heading an empire which is an electronic media empire. If I were him, I would think that it's likely he will shift his headquarters from Mumbai to Delhi. But then it will be seen as a sign of, caving in, and it will be seen as a sign of giving up. Because, it does not matter today. In electronic world, it does not matter whether you are operating from Mumbai or you are operating from Gorakhpur, for that matter. How does it matter? You have your team, you have your OB vans, and you have everything, and everything works on the high-speed internet network. But they cannot keep Arnab for more than 1 or 2 days. He will get a bail. He will come out stronger. There will be more egg on the face of Balasaheb Thackeray's son, Uddhav Thackeray. There will be more egg. Or ye Putra Prem will one day result in the doom of Shiv Sena. This is, I honestly think that they are stretching it too much. And perhaps this is the last straw on the camel's back, and the camel's back will break now. I hope what you are saying is true, and ये last straw हो तो बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि we have seen piling of such straws which made people queer in their homes, learning about these developments where we felt that law and order machinery was manipulated, and there were concocted stories planted in the media against someone whose name was not even in the FIR, and you end up finding yourself in a state where you stop taking a close interest in the news because you feel that the flow is moving in a direction which is not acceptable to you. तो कई बार हम पलायन जैसा करने लग जाते हैं न्यूज से, जो हमारी शांति के लिए जरूरी होता है. बट नाउ continuing with call it a sentiment or impressions expressed by Sudhir ji, Arnab has consistently maintained his stand in spite of so many pressures, and that is a credit to this gentleman, not just as a journalist but also as a human being, to be able to have that kind of a stamina कि इतने सारे प्रेशर के ऊपर प्रेशर हो लेकिन आप उसको विथस्टैंड कर सको. एंड बाबा जी, मैं एक बात जो एक क्रिटिसिज्म की तरह बार बार सुनाई देती रही कि अर्नब कुड डू ऑल दिस बिकॉज ही हैज द बैकिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और बैकिंग ऑफ बीजेपी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि दैट वाज आल्सो फैलेसी. तो इसके बारे में आपका एनालिसिस क्या है? और सुधीर जी ने लीगल एंगल से बताया कि पॉसिबल आउटकम आने वाले समय में क्या हो सकता है. पॉलिटिकली आपको क्या लगता है, विल अर्नब गेट सम सब्सटेंशियल हेल्प? क्योंकि स्टेटमेंट्स तो बहुत सारे मिनिस्टर्स के महाराष्ट्र सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले और प्रो अर्नब आ रहे हैं. हेलो. हाँ बाबा जी, आपसे सवाल आपसे. अशोक जी, आप भी जानते हैं
जैसे कि ये चैनल भी चालू हुआ तो इसमें अर्नब के साथ एक व्यक्ति और इन्वॉल्व है, कोई राज्यसभा सदस्य हैं जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। तो आप जानते हैं जैसे और दूसरे चैनल के पीछे कोई ना कोई पार्टी है, लेकिन वो सामने नहीं है। तो अर्नब के पीछे भी कोई है तो वो भी सामने नहीं आएंगे, राजनीति सीधी सीधी। लेकिन एक बात है कि वो पीठ के पीछे पूरा सपोर्ट करेंगे। जिस सपोर्ट चल रहा है वो न्यायिक में सपोर्ट करेंगे, वो आर्थिक रूप से सपोर्ट करेंगे। वो चैनल जब सुधीर जी बता रहे थे, लेकिन बहुत सारे चैनल्स की हालत खराब है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। कई सारे चैनल, इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे चैनल जो हैं किसी न किसी रूप में विज्ञापन और इसके लिए मारामारी हो रही है ना, तो एक दूसरे के पीछे ना बोल पाने का कारण यही है। अभी जैसे जितने चैनल हैं वो पीछे आप बात कर रहे थे केक काट रहे हैं, वो हंस रहे हैं या वो खुशी मना रहे हैं, उनके खुशी मनाने का कारण ये नहीं है कि अर्नब फंस रहा है, उनके खुशी मनाने का कारण है कि हमारा हिस्सा हमको मिल जाएगा। तो ये एक किसी ना किसी चैनल पीछे कोई ना कोई राजनीतिक दल है जो उनको सपोर्ट करते हैं। और ऐसे अगर आप चेक करें सबके पीछे है तो बीजेपी सपोर्ट पीठ पीछे करेगी, इसमें सत्य है कि वो करेगी सपोर्ट, लेकिन सामने आके सपोर्ट इतना नहीं करेगी, खुद के हाथ पर कटा लेवे। तो लड़ाई तो उसको खुद को अपने दम पे लड़ना पड़ेगी। और ये बात भी सत्य है कि न्यायिक रूप से वो जीत भी जाएंगे। और जैसा सुधीर जी ने बताया बिल्कुल सत्य है कि पहले उसकी ताकत कम थी, अब ताकत बढ़ गई। जितना ये उसको दबाएंगे वो उतना प्रेशर में उठेगा। हम कई बार बोलते हैं ना कि अयोध्या में रह के राम राजा बन सकते थे, लेकिन वनवास के कष्टों ने उठकर उनको भगवान बना दिया। तो अर्नब एक छोटा सा पत्रकार था, उसको पूरे देश का एक जो हीरो होता है, जैसा उन्होंने कहा कि साहब एक नरेंद्र मोदी आज का आइकॉन है, तो ये सारे कष्ट मिला के उसको आगे बढ़ा देंगे। और दूसरे पत्रकारों के लिए मैं केवल एक ही बात कहूंगा, जो बहुत पहले आपको याद है मैं अमेरिका में बोलता था, औरों के लिए ना बोलेगा वो मारा जाएगा, और कल घाट मौत के वो भी उतारा जाएगा। ये दूसरे चैनल वालों के लिए है, कल घाट मौत के वो भी उतारा जाएगा। हम घर औरों के सहारे नहीं बने तो बनने को कौन हमारा सहारा आएगा। तो ये होगा, लेकिन लोग एक एक करके पीटेंगे। लेकिन ये जो अभी मुद्दा हुआ है भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगा। आपको एक बार बता दूं मैं, ये जो अभी अर्नब के साथ हो रहा है ये ऐसी मिसाल बनेगा कि भविष्य तक कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के चैनल को या किसी दूसरी विचारधारा के चैनल को हाथ लगाने में या तो डरेगी या खत्म करने में नहीं डरेगी। तो इसका उदाहरण सेट होगा अर्नब की सफलता से या उसकी असफलता से। अगर वो दब गया तो जाने कितने चैनल दबा दिए जाएंगे। और अगर जनता ने साथ दे दिया तो भविष्य के लिए कोई किसी पत्रकार को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या होना है ये भविष्य बताएगा, इसका प्रकरण जो होगा उससे सिद्ध होगा कि भविष्य क्या होगा। हम सभी मुझे लगता है बहुत लोग हम में से ये दृश्य देखकर अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट होने के शॉक्ड होने के साथ साथ एक तरह का आक्रोश कहीं चुपचाप सा हमारे अंदर जाग जाता है कि ये स्थितियां तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा न्यायप्रिय ढंग से कार्यवाहियां हों और सरकार किसी बदले की भावना से कार्य कर रही है, चाहे वो कानून की मदद लेके या पुलिस फोर्स की मदद लेके अपने एक इंटेंट को इस तरह मैनिफेस्ट कर रही है जो कि आम जनता में एक निष्पक्ष रूप से व्यवस्था कार्य कर रही है, इसके प्रति एक संदेह उत्पन्न कर देता है। और वो संदेह काफी समय से जो चला आ रहा है वो और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति न तो सिस्टम के लिए हेल्दी है और ना तो रिपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पत्रकारिता के लिए हेल्दी है, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि ये राजनीतिक दृष्टि से भी कोई बहुत स्वस्थ स्थिति नहीं है। और जो संसाधन सीमित हैं, जो कि हर बात में सीमित ही होते हैं, उनका क्या उपयोग कब कहाँ किस तरह से किस समय पर किया जा रहा है वो सब भी जनता के सामने सोशल मीडिया के द्वारा तुरंत रियल टाइम में आता जाता है। तो फिर से शिवसेना की या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी छवि सुधरे इस दिशा में और अधिक रोड़े ये सारी घटनाएं अटका देती हैं। पर मुख्य बात यह है, जैसा मैं संक्षेप में दोहराऊं, कि अभी जिस तरह के इश्यूज को अर्नब गोस्वामी ने उठाया है और भारतीय जनमानस में उनके प्रति जो एक सद्भाव, उनके समर्थन का जो भाव है उसको, और जैसा कि ये केस के बारे में डॉक्टर सुधीर बिष्ट जी ने बताया, सबको देखते हुए लगता है कि ये एक और परीक्षा जैसा कालखंड है जिससे वो विजयी या मजबूत होकर निकलेंगे, क्योंकि उस दिशा में
घटनाक्रम का बढ़ना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि बहुत सारे लोगों को भी इससे प्रसन्नता, अप्रसन्नता, आशा, निराशा उनकी इसके साथ जुड़ी हुई है। ये बातें घटनाक्रम के साथ जुड़ी हुई होते हुए भी कभी समाप्त नहीं होती हैं, पर बहुत सारगर्भित चर्चा रही। डॉक्टर सुधीर बिष्ट, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, आपके लिए मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बाबा जी, आपने अपना समय निकाला, इंदौर में बैठे हुए अपनी केदारनाथ यात्रा से लौटते, और हम सभी अपने अपने तौर पर सजग और सक्रिय होकर जहां जहां हमें स्वर उठाना चाहिए उसके प्रति हम सजग रहें। इस बात से आप दोनों सहमत होंगे। और अगर मैं ये कहूं कि आज हम ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां हम में से हर एक किसी न किसी रूप में पत्रकार हो गया है सोशल मीडिया के कारण, तो जो पत्रकार के खतरे हैं वो हमारे खतरे भी हैं, और जो पत्रकार के पक्ष में बोलने वाला उत्तरदायित्व है वो हम सबका उत्तरदायित्व भी कहीं ना कहीं बन जाता है। तो फिर एक बार इन दोनों महानुभावों का धन्यवाद और आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।